اوکے. جی بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد. محترم و معزز حضرات ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ٹاپک گزشتہ ہم شروع کیے تھے، اس کا دوسرا حصہ یعنی اس کا کنٹینیو ہم کرنے والے ہیں. تو گزشتہ جو باتیں چلی تھی ان میں سے قابل غور نکات یہ ہیں کہ خلق یعمل علی شاکلۃ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر انسان آخرکار جب عمل کرتا ہے تو اس کا اصل محرک اس کا اپنا شاکلہ ہوتا ہے. سب کا سنتا ہے انسان، اپنا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے بولے ہوئے بات کو وہ مان لے. اگر کسی کی بات کو مانتا بھی ہے تو اس کا مطلب اس بات کو وہ مانتا ہے اس لیے عمل کرتا ہے. خلق یعمل، ہر ایک عمل کرتا ہے علی شاکلۃ، اپنے شاکلہ، اپنے ذہن کا خاکے کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق. اب رہی بات حق پر کون ہے، ہدایت پر کون ہے، یہ جو ہے اللہ ہی فیصلہ کرے گا. تو اب انسان کے لیے چیلنج کس بات کی ہے؟ اصل چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے وہ حق کے خلاف، یعنی حق کو جان کر اس کے خلاف کرنا، ویسے ہی سچائی کو جان کر پھر اسے ٹھکرا دینا، یہ اصل جرم ہے انسان کا. تو اب یہ شاکلہ جو ہے ذہن کا کس اعتبار سے، یعنی کن اعتبار سے بنتا ہے، اس سے بھی تفصیلی بات ہوئی تھی ہماری. اس میں بنیاداً جو ہے 3 سورسز ہیں جس کے ذریعے سے شاکلہ بنتی ہے. ایک خود اس کا اپنے نفسانی خواہشات یا فطری رجحانات سے ایک ذہنی خاکہ بنتا ہے. دوسرا اپنے جس قبیلے یا کنبے میں یا جس فیملی میں پیدا ہوا ہے ان کے اندر جو آئیڈیاز ہیں اس کے مطابق اپنا خاکہ بناتا ہے. پھر تیسرا جو ہے سماج، جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر وہ رہتا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے یا اس کے وضع کیے ہوئے طریقوں پر آدمی چلتا ہے، اس سے خاکہ بناتا ہے پہلے، پھر اس کے مطابق وہ چلتا ہے. اب چارواں بھی ایک یعنی چارویں ایک پالیسی ہے، وہ الہی پالیسی ہے. اب الہی پالیسی ہی حق ہے، غیر الہی پالیسی باطل ہیں. اس کا تعین کون کریں گے، کیسا کریں گے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لہٰذا ہم قرآن کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں. کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بائبل کے تعلیمات کو حق مانتا ہے، یا کوئی ہندو سماج کے اندر پیدا ہوا تو اپنی گیتا، یا پھر اس کے فیملی بیک گراؤنڈ یا اس کی سوسائٹی یا اس کے جو ہے ذہنی شاکلہ، اگر وہ دہریہ ناستک بن گیا تو اس کی پیروی کرتا ہے، اسی کو حق مانتا ہے. تو ہم جو ہے ویسے ہی کیا قرآن کو حق مانتے ہیں یا قرآن حق ہونے کو سمجھ کے حق مانتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے ہر مسلمان کے سامنے. یہ کیسے ہم تعین اس کا کریں گے؟
یہ بہت اہم نقطہ ہے. ابھی جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس پہ ایک بات ہے، دیکھیے کہ انسان کو جو آزمائش اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے، انسان کی پیدائش کی وجہ کیا ہے. اس کے دو وجہ ہیں، میں نے بیان کیا. اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ نکات جب ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جاتے، یہ ہمارے نشان راہ ہوتے، ہمارے سوچنے کا انداز اس سے ہو جاتا، تو بالکل صحیح اور غلط کیا ہے نمایاں طور پہ ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جاتا. تو اس میں جو ہے انسان کی پیدائش کی وجہ، انسان کی موت کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے انسان کے پیدائش کی وجہ کیا ہے، بھلائی کو پہچان کر، یعنی بھلائی کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے، بھلائی ہونے کو پہچاننا، یا کسی کے کہنے پر بھلائی، یا اپنے من چاہی چیز کو بھلائی کہنا، یا کسی وہ حقیقی طور پہ بھلائی ہونے کو پہچاننا. بولے تو وہ اس کے طور پہ بھلائی ہونا ہے، ویسا اس کو جانے پہچانے، پھر اس کے بعد عمل پیرا ہونا. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اصل کیا ہے، یہ آزمائش میں نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے جو عقل سلیم اس کو عطا کیا، جو یعنی صحیح اور غلط کا ڈسکرمنیشن کا جو پاور میں نے دیا، اس کے ذریعے سے صحیح کو صحیح ہونے کو، غلط کو غلط ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں ہے. یہی ہے وہ جوہر انسانیت. یہ دیگر جانداروں کے لیے اس طرح کی جو ہے خصوصیت نہیں ہے، صرف انسان کے لیے ہے. تو پہچاننا ہے پہلے صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے یہ پہچان لیا آدمی، تو اس کے بعد اس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس کی پیروی انسان کرے گا نہیں کرے گا، یہ دوسرا پہلو ہے. یہ دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. تو یہی چیز آزمائش ہے انسان کے لیے. اسی طرح کسی چیز کو برائی ہونے کو یعنی آدمی سمجھتا ہے، یعنی اپنے طور پہ برائی سمجھتا ہے، یا کسی کے بولنے پر سمجھتا ہے، یا برائی حقیقی طور پہ وہ برائی ہونے کے اعتبار سے اس کو برائی سمجھتا ہے. یہ بڑی چیلنج کی بات ہے. پھر یہ جب اپنے عقل سے آدمی یہ حقیقی طور پہ برائی ہے، غلط ہے بلکہ مان لیا، باطل ہے بلکہ سمجھ میں تو آ گئی اس کو، پھر اس کے بعد اس سے اجتناب کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے. اسی لیے انسان کی زندگی دی گئی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہوتا ہے، اس کو جان کر پہچان کر اختیار کرنا، اور غلط جو ہے عمل کیا ہوتا ہے اس کو جان کر اس سے اجتناب کرنا، یہ انسان کے زندگی کا مقصد ہے. اپنے جو ہندوستانی ویدک تھیولوجی میں بھی ایک بڑی اچھی بات کہی گئی ہے. انسان کس کو کہتے ہیں، بتایا جاتا ہے وید میں، انسان اس کو کہتے ہیں اپنے عقل سے سچائی کو پہچان کر پھر اس کی پیروی کرے. یا پھر اور ایک انداز میں بتایا جا رہا کہ اپنے نفسانی خواہشات کو، دیکھیے اپنے نفسانی خواہشات کو عقل کے تابع کرے، اپنے نفس کو عقل کے تابع کر کے زندگی بسر کرنے والا ہی انسان ہے. تو یہ جو ہے انسان کی خصوصیت اس طرح بتائی جا رہی. اس کے بعد موت کیوں آ رہی انسان کی، بولے موت اس لیے آتی ہے کہ دنیا میں جو بھلائیاں وہ اختیار کیا ہے اس کا بدلہ آخرت میں جنت کی راحتوں کے روپ میں اس کو مل سکے. پھر دنیا میں جو جرائم کیے ہیں، جو کرائمز کیے ہیں، ان جرائم کے بدلے میں اس کو جو ہے جہنم کے سزائیں مسلط اس پر کریں. یہ انسان کے موت کی جو ہے وجہ ہے، انسان کی زندگی کی وجہ، انسان کے موت کی وجہ. 2 وجہ زندگی کے، 2 وجہ موت کے. یہ کلیئر بات جو ہے ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب رہی بات دوسروں کی پالیسی کیوں اختیار نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ وہ علم نہیں رکھتے.
क्या इल्म नहीं रखते कि इंसान के पैदाइश की वजह की इल्म, इंसान के मौत की वजह की इल्म वो लोग नहीं रखते, इसलिए उनकी पॉलिसी गलत होगी। इलाही पॉलिसी ही सही होगी, क्योंकि इलाही पॉलिसी सही होने की दलील क्या है? यानी सिर्फ अकीदा है, सिर्फ ईमान है, या उसके लिए कोई पैमाना भी है? अभी जदीद दौर, यानी दौर हमेशा जो है अकल, यानी अकल ही मेयार माना गया हर जमाने के अंदर। अब ये जमाना तो बहुत ज्यादा जो है इंसान की अकल और उसकी बसीरत, उसकी शऊर का ये जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लोगों के अंदर। लिहाजा रीजन की बुनियाद भी हमें बनाना पड़ता है। रीजन क्या है? जैसा कि कुछ कुरान के तस्वुरात हैं, इन्हें खुदा का तस्वुर क्या है और इंसान की जिंदगी का तस्वुर क्या है, मरने के बाद की जिंदगी का तस्वुर क्या है। बुनियादन 3 तस्वुरात बहुत अहम हैं, उसके तहत बहुत सारे तस्वुरात आ जाते हैं। सबसे पहले रियल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज व्हाट, ये क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास रहना है। उसके बाद रियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज व्हाट, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मालूम होना है। रियल कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन इज व्हाट, ये अकायद। और अब उसी खुदा के बारे में दूसरों के पास बहुत सारे अकीदे हैं, जैसे खुदा है या नहीं उसका तायुन नहीं कर सकते बोल रहा कोई बोल रहा कि खुदा जो है लेकिन दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। फिर कुछ लोग मानते हैं खुदा है लेकिन वो पूरी कायनात की तरह अपने आप को जो है अपीयर किया, यानी उसको हम ऐसे कहेंगे कि जो है जैसे एक मिट्टी का ढेर है समझिए, उसको मिट्टी के बर्तन वर्तन बना दिए गए, या सूना है, लीजिए 1 किलो सूना है समझिए, उस सूने से मुख्तलिफ जो है गारमेंट्स या क्या कहेंगे उसको ऑर्नामेंट्स बना दिए गए, यानी हार या अंगूठी वगैरह इस तरह की जो है चीजें बना दी गई। तो कहाँ है सुना? वो ढेर सारा सुना क्या हुआ, उन अशिया में तब्दील हो चुका है। तो ये भी एक नजरिया है कि खुदा जो है इस कायनात की तरह मजहर इजहार हो चुका है कायनात के रूप में, ये भी एक नजरिया है। फिर एक नजरिया है, इसको पैंथीज्म कहते हैं। दूसरा जो है अभी जो बता रहा हूं मैं, वो इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट भी है, वैसा भी एक नजरिया है। ठीक है, आपके पास या हमारे पास, कुरान वालों के पास भी एक नजरिया है खुदा के बारे में। अब रही बात इन इतने सारे नजरियात में से कौन सा नजरिया सही है, इसके लिए स्केल क्या है, इसका स्केल क्या है? अगर अभी मैं जो स्केल आपको बता रहा हूं इसको अच्छी तरह आप समझेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस्लाम के सदाकत को लोगों के सामने हम पेश कर सकते हैं। हम बिल्कुल अकीदे के बुनियाद पे या उसकी अजमत के बुनियाद पे ये हक है बोल के हम बोलना, ये दुनिया वाले नहीं मानते इस बात को। अब देखिए, आपका कौन सा भी नजरिया हो, पहले सबसे पहले तौहीद का नजरिया बता रहा हूं मैं। ये नजरिया, इतने सारे नजरियों में से ये नजरिया सही है बोल के आप बता रहे हो, दलील क्या है बोले? अब दलील बता रहा हूं, देखिए दलील ये है कि नजरिया, वो नजरिया हक है, वो नजरिया सही है, और वो नजरिया बातिल है, गलत है। कौन सा नजरिया हक है? जो नजरिया इंसान के दिमाग को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकता हो, वो नजरिया दिमाग, जिस आदमी के दिमाग में बैठेगा उसके अंदर मुस्बित फिक्र, क्या ना है सबसे पहले, उसका फिक्र मुस्बित हो, उसका रविश मुस्बित हो। जिस नजरिए से ये 2 कैफियत पैदा होते हैं इंसान के अंदर, वो नजरिया सही है। ये है अल्टीमेट स्केल। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको शायद वाज़ेह हुआ होगा, फिर एक बात बता रहा हूं। जिस नजरिए के जरिए इंसान के अंदर मुस्बित सोच और मुस्बित अमल, 2 ही चीजें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर, जो नजरिया इंसान में क्रिएट करता है, इनकलकेट करता है, डेवलप करता है, तो वो नजरिया हक है। जिस नजरिए से इंसान का माइंड जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, उसके बिहेवियर में भी जो है कोई मतलब एक
منفی رجحان پیدا ہوتا ہے وہ نظریہ غلط ہے. چاہے وہ نظریہ خدا کا ہو، چاہے وہ نظریہ آخرت کا ہو، چاہے وہ نظریہ زندگی کا ہو، کانسیپٹ آف گاڈ ہو، کانسیپٹ آف لائف ہو، یا کانسیپٹ آف سالویشن. مثلا کانسیپٹ آف لائف کو لے لیجئے. یہ زندگی بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے. جب یہ نظریہ جب کسی آدمی کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا روش مثبت ہو گیا منفی ہوگا. بولے اگر ہم اس پہ غور کریں گے یا دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی کہ جس آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گیا کہ میری زندگی بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب دینا لینا نہیں ہے، بس ایک آئیڈیا. یہ آتے ہی آدمی جب جو ہے ایک نفس پرست اور جو ہے دنیا پرست اور دنیا کے ہوس اس کے اندر بےحد پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ ایک مثبت روش نہیں رکھتا بلکہ اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے سب کو استعمال کرنا شروع کر دیتا. تو لہٰذا یہ نظریہ کیا ہے؟ بولیے یہ نظریہ غلط ہے. کس اعتبار سے؟ وہ نظریہ قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے غلط ہے، وہ نظریہ مذہبی نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ایک نظریہ غلط ہونا نہیں ہونا قرآن میں ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ایک نظریہ صحیح ہونا غلط ہونے کا آپ تعین باہر کے لوگوں کے لیے بول رہا ہوں میں. مسلمان ہیں وہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو صحیح مانتے ہیں، ان کے لیے قرآن قابل حجت ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن جب قرآن کی بات صحیح بول کے کیسا بتا رہے آپ؟ قرآن کی جو ہے تعلیمات حق ہونے کو جو ہے کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے بولے تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں دلیل ہم کو باہر سے دینا پڑے گا. تو ہماری دلیل یہ ہے کانسیپٹ آف لائف. اب کانسیپٹ آف سالویشن کی بات بھی ہوئی ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، بولے جنت ہے جہنم ہے، وہ بھی ابدی جنت ابدی جہنم بولے تو ایکسٹریملی اس کے اندر جو ہے اس کا ایک ایکسپیرینس، مطلب اس کے اندر ایک ایسا رجحان پیدا ہوتا کہ جب ابدی جہنم بولے تو انسان دنیا کے اندر برائیوں سے بھاگتا، اور ابدی جنت ہے بولے بھلائیوں کی طرف لپکتا آدمی. یہ موٹیو فورس بنتی ہے، چیزیں انسینٹیوز بنتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ نظریہ صحیح ہے. یہ جو ہے کوئی نظریہ صحیح اور غلط ہونے کا تعین اس انداز میں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہہ رہا؟ افلا تاخلون افلا یتدبرون بول کے بول رہا، کیا تم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کا جو ہے پٹی دے دے کے اب اس کو بلائنڈلی فالو ہو جاؤ بول کے اللہ تعالیٰ نہیں بول رہا. تدبر کرو، غور کرو بول کے بول رہا بار بار اللہ تعالیٰ. عقل کو استعمال کرو بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ. وہ عقل کو استعمال کرنا، تدبر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ نظریات سے مفاد یعنی دنیاوی مفاد، مادی فوائد کیا ہے، اور قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں مادی طور پہ، ان کو جاننا، یہ اصل جو ہے صحیح اور غلط کا تعین کا طریقہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اب آئیے، تو یہ جو پالیسی بنانے والے انسان کے متعلق، انسان کا جب یہ پروگرام ہے، اس کا جو ایک پروجیکٹ ہے انسان کا، اس کا علم جن کے پاس نہیں وہ پالیسی بنائیں گے تو ناقص رہے گا. انسان کے ٹوٹل ہول لائف کا جو پروجیکٹ کا آئیڈیا جس کے پاس ہوگا اس کا پالیسی صحیح ہوگا، اور وہ قدرت والا بھی ہونا چاہیے وہ پالیسی بنانے والا. یہ باتیں گزشتہ جو ہے ٹاپک میں آ چکی ہیں. اب نیکسٹ سلائیڈ پہ آئیے. جی، واضح الہی پالیسی کی نزول کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی کا نزول جو ہوا ہے اس کی جو اصل خصوصیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، کیا کہا جا رہا؟ دیکھیں سورہ نمبر 57 آیت نمبر 9، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر نازل کر رہا ہے صاف صاف آیتیں. دیکھیے، تاکہ تمہیں نکال کر تاریکیوں سے روشنی میں لے آئیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں. بہت اہم جو ہے باتیں اس میں بتائی جا رہی. 3 نکات بڑی جو ہے قابل غور ہیں.
तारीकियों से निकालना, तारीकी एक सिनोनिम है इल्म का, जहालत का तारीकी, और इल्म जो है रोशनी, इल्म का लिए मुतरादिफ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तारीकियों से निकालना यानी ला इल्मी से निकालना। को से ला इल्मी से निकालना? ला इल्मी क्या है यहाँ? ला इल्मी ये है कि इंसान क्यों पैदा हुआ और क्यों मर रहा है, इस बात की जानकारी ना होना ला इल्मी है। ला इल्मी मतलब जो है कोई ड्राइविंग करना नहीं आना आदमी को, या पकवान नहीं आना, या कोई जो है कोई आर्टिस्ट नहीं बनना, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, वो ला इल्मी नहीं है। कुरान मजीद के उसमें जो है जबान में ला इल्मी का मतलब क्या है? इंसान के पैदाइश की वजह, इंसान के मौत की वजह, ये ला इल्मी से निकाल के फिर उसको क्या करना? रोशनी की तरफ यानी इल्म की तरफ ले आना। नंबर 2। नंबर 3, खुदा ये पॉलिसी इंसानों को देने की वजह यह है कि इंसानों के साथ बेहद शफीक और बेहद मेहरबान है। अरे अल्लाह ताला ये पॉलिसी इंसान को देने का तकाजा क्या है कि अल्लाह के अंदर रऊफ और रहीम के सिफात हैं। जब जो आदमी जिस किसी के बारे में रऊफ हो जाता, रहीम हो जाता, उसकी भलाई चाहता है, उसे उसके नुकसान से बचाने वाला बन जाता है। जब किसी के साथ आप रऊफ नहीं रहेंगे, रहीम नहीं रहेंगे, फिर उसकी भलाई नहीं चाहते हैं आप। तो अल्लाह ताला इंसान के हक में क्या है? रऊफ है और रहीम है। इसलिए अल्लाह ताला अपने पैदाइश की, अपनी मौत की लाइल्मी से निकालकर इंसान की अपनी पैदाइश और मौत का इल्म देने के लिए अल्लाह ताला इन साफ साफ आयतों को अल्लाह ताला नाजिल किया। ये है अल्लाह की पॉलिसी के नुज़ूल की जो है वजह। नेक्स्ट। अब आइए इलाही पॉलिसी की खुसूसियत क्या है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब खुसूसियत देखिए, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है, मतलब गाइडेंस है। नंबर 2, और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली है। अरे एक्चुअल वे ऑफ लाइफ, एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन, एक्चुअल मॉरल कॉन्सेप्ट्स, हकीकी तौर पे एक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हकीकी तौर पे क्या होते हैं हर एक के, वो बताने वाली जो है ये किताब है। और हक वो बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली हैं। इसमें गौर तलब नुकात 4 हैं। नंबर 1, ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो ईमान के दायरे से बाहर हैं। जो लोग ईमान नहीं रखते हैं, यानी जो हिदायत में नहीं है, उनके लिए क्या है किताब? एक गाइडेंस। उसकी तालीमात में कोई इबहाम नहीं है, यानी कंफ्यूजन नहीं है, गुंजलकपन नहीं है, वाज़ेह तालीमात। नंबर 3, ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो ईमान के दायरे के अंदर हैं। यानी 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए, हिदायत के अल्फाज 2 इस्तेमाल हुए हैं। जैसे देखिए, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। 2 हिदायत की जो है अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक गैर ईमान वालों के लिए हिदायत, एक ईमान वालों के लिए हिदायत। गैर ईमान वालों को ईमान क्या है
اور جو ہے غیر ایمان کیا ہے، یہ ان کو جو ہے اس زمن میں ہدایت ہے. ایمان والوں کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس میں جو ہے ان کے لیے ہدایت یہ کتاب ہے. اور چارہویں خصوصیت یہ ہے جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان میں حق اور باطل کا تمیز پیدا کر دیتی ہے. یعنی قرآن مجید کا صحیح مطالعہ جو آدمی کرے گا، اس کی حقیقی جو ہے اعتبار سے اس کا مطالعہ جو کرے گا، اس کے اندر ایک فیکلٹی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک خصوصیت پنپنے لگتی ہے. اس کے نظریں جو ہے جیسے جنرل کیمرہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ باہر آدمی کے ظاہر کو عکس لے لیتا ہے. ایک میڈیکل جو کیمرہ ہوتا ہے وہ اندر کی جو ہے کیفیت کو لیتا ہے. یعنی قرآن کا علم جس کے دماغ کے اندر راسخ ہوتا، قرآن اورینٹڈ جس کا مائنڈ ہو جاتا، تو اس کے نظریں جس کسی پہ پڑتے ہیں تو وہ آؤٹر کور ہی نہیں انر کور میں بھی دیکھنا شروع کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ظاہر میں صحیح دکھتے، باطن میں غلط رہتے. کچھ چیزیں باطن میں صحیح دکھتے، غلط دکھتے، مگر باطن میں جو ہے صحیح ہو سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ان ڈیپتھ نالج، یہ ڈسکرمنیشن پاور اس کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ریشنل انداز میں قرآن کو جو اسٹڈی کریں گے ان کے لیے یہ جو ہے برکتیں کہیے یا اس طرح کے جو ہے قرآن کی فضائل ان کو ملتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اب دیکھیے الہی پالیسی، میرے پالیسی کو چھوڑ کر جو دوسرے پالیسیوں کے مطابق چلیں انہیں میں سختی کے ساتھ پکڑ لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے چیتاونی دے رہا ہے یا انتباہ، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ان کو وارننگ دے رہا ہے. اب یہ وارننگ کی بھی وجہ کیا ہے اس کو بھی ہمیں جاننی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں عموماً اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ لے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا اور فلاں، یہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. اللہ کی جو ہے بندگی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. تو عام لوگوں کو سمجھ میں آتا اللہ تعالیٰ اتنا ایروگنٹ کیوں ہے، بولے نعوذ باللہ. کچھ لوگ مجھے سوال بھی کیے ہیں سے، کیوں خدا تمہارا اتنا ایروگنٹ کیوں ہے، میری ہی بندگی کرو، کسی اور کی بندگی نہیں کرنا، نہیں تو پھر جہنم میں ڈال دوں گا. بولے اتنی اس کی عبادت کی ہوس اتنی کیوں ہے، بول کے سب پوچھ رہے لوگ. تو اس کی حقیقت کیا ہے صحیح، اس کے طرف بھی ہمیں غور کرنی ہے. بہرحال اپنے پالیسی کی روگردانی اگر کریں گے تو ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے انتباہ دے رہا. دیکھیے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 37، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی، دیکھیے فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے، حکمن عربیہ. اوکے، اب اگر یعنی یہ فرمان تمہارے پاس آ جانے کے بعد، اب اگر تم نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی فرمان الہی، پالیسی الہی آ جانے کے بعد پبلک کی پالیسیوں پہ اگر چلنا شروع کرو گے، یہ بات ہے اصل. دو پالیسیز کی بات چل رہی ہے ہاں. اوکے، ایک ڈیوائن پالیسی، ایک جو ہے پھر میٹیریل یا مین میڈ پالیسیز کی بات تقابل میں چل رہی ہے. جب میری پالیسی تمہارے پاس آ گئی، آنے کے بعد اس کے جو پروگرام سے ہٹ کے کوئی اور دوسروں کی پالیسیز کے مطابق اگر چلو گے، اس علم کے باوجود، دیکھیے یا کنڈیشن ہے، اگر انوسنسی میں ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میری کلیئر کٹ پالیسی تمہارے پاس آنے کے بعد اگر روگردانی کرو گے تو یہ جو ہے آپ کے ساتھ بہت سخت معاملہ کیا جائے گا. ہاں البتہ علم تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی قرآن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، پھر تم اپنے طور پہ بہرحال کچھ چیزیں کرتے ہو تو پھر اس کی بات الگ ہو سکتی ہے. لیکن اللہ واضح طور فرما رہے ہیں کہ علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکی ہے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچانے والا.
और ये मददगार नहीं होगा, पकड़ने वाला जो है मतलब सख्ती से वो पकड़ लेगा, उसके पकड़ से बचाने वाला नहीं होगा। ये बात को हम कैसे समझें? मैं कभी आप भी बहुत सारे मतलब ये देखते होंगे कि जियोग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल, उसके अंदर देखिए शेर, चीता, हिरनी या दीगर जो है इस तरह के भेड़ियों पर बेदर्दी से हमला करके फिर चीर-फाड़ के खा जाना आप देखते हैं ना? तो ये क्या है? अल्लाह ताला की जो है मतलब उसकी जब्बारियत का इज़हार है वो। एक मासूम ऊँटनी या जो हिरनी या कोई जो गाय जब अपने बच्चे को जनती है, तो अब वो बड़ी तकलीफ से जनने के बाद फिर उसे अपने जीभ अपने ज़बान से चाट के साफ करती है। तो फिर एक चीता दूर से देखता है। अब उस मौके पर जाके उस बच्चे पे या उस जो है गाय पे जो हमला कर देता है, तो कितनी तकलीफ़दा बात होती है, कैसा महसूस होता है हमें? तो ये जो है अल्लाह ताला बोले देखिए और ना कोई अरे उसके पकड़ से तुमको बचाने वाला नहीं होगा, उसकी पकड़ के इतनी बेदर्दी के साथ होगी, कोई रहम, कोई कर्म का मामला नहीं होगा, बड़ी बेदर्दी से दबोच दिया जाए, फाड़ दिया जाए, चीर दिया जाएगा, जैसे तुम देखते हो। ये जो है निशानी अल्लाह ताला बताना चाहता है। पूरी कायनात हमारे अतराफ जो बना है अल्लाह ताला, इससे सबक हासिल करने के लिए, इसे देख के खाली जो है एंजॉय करने के लिए, खुश होने के लिए ऐसा नहीं है, गौर करना है इसमें। तो खुदा के सिफात का मजहर है पूरा कायनात है, सिफात का मजहर, जाते खुदा का मजहर नहीं, बल्कि सिफात खुदा का मजहर है। हाँ, सिफात खुदा का मजहर है कायनात। एक दहकती हुई जहन्नम है, वो हमेशा रहेगी, इस तरह की बात बोल रहा अल्लाह, कैसे दहकती होंगी, कैसे हमेशा रहेगा बोले? तो सूरज को देखो, सूरज कितने कई सैकड़ों सालों से, लाखों सालों से दहकता हुआ हमें सैयारा दिख रहा। तो जब वो खुदा बात कर रहा जो इस सैयार तुम्हारे आंखों के सर के आंखों से जिस सैयारे को देखते हो, उसको बनाने वाला खुदा बोल रहा है कि तुम्हारे दहकती हुई आग तुम्हारे लिए ऐसे जो है जालिमों के लिए तैयार है बोले। क्या ये हमें समझ में आने वाली बात नहीं है, बताइए? वैसे फिर चांदनी देखते हैं आप, दिल खुश कर देने वाली एक जो है पुरकैफियत वाले एक समा आप देखते हैं। तो फिर जन्नत की तारीफ करता है अल्लाह ताला, जैसे कश्मीर की वादियां यानी स्विट्जरलैंड के जो है नहरें, ये सब चीजें अल्लाह ताला बताता है। तो फिर वही खुदा जो स्विट्जरलैंड के नहरों को बनाया, जो कश्मीर के वादियों को बनाया, उसी खुदा का एक कहना यह है कि तुम्हारे लिए जन्नत बनाया हूं मैं हमेशा के लिए। तो ये चीज बताई जाती है। तो वैसे ही अल्लाह ताला का रहम का मामला कैसा होगा? एक ऊंचा एक दरख्त, लंबा दरख्त झाड़ियों में हम देखते हैं, जंगलों में देखते हैं। फिर वहां एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया एक जो है अंडा देती है, फिर उसको सेक के उसमें से बच्चा निकलता है। फिर वो बच्चा छोटा जो भूख भूख से एकदम पुकार उठता है, फिर वो कहीं दूर जाके कुछ छोटे छोटे जो है उसके खाने के लिए कुछ कीड़े पतंगे लाके उसके मुंह में डालती है। ये मोहब्बत का जो है इजहार है, खुदा के मोहब्बत का इजहार है। या कोई बकरी या गाय अब अपने बच्चे को जन्ने के बाद अपने जबान से चाटती है उसे, अपने जबान से साफ करते हैं। ये मोहब्बत खुदा का जो है एक इजहार है। ये अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो इतना जो है प्यार, इतना मोहब्बत का इजहार करता है, इतना जो है वो अपना बना लेता है। तो इस तरह जो है कायनात के अंदर जो भी हम चीजें देखते हैं, ये खुदा की जब्बारियत और खुदा की रहमानियत, ये दो सिफात को हम देखते हैं। तो अब अल्लाह ताला की असल बात की तरफ हम आएंगे। वो बात ये है कि अल्लाह ताला के यानी ये उसके जो पॉलिसीज हैं इंसान के जाती, इंसान के अपने जहनी, जिस्मानी, अखलाकी, समाजी, माहौलियाती फवायद को पहुंचाने वाले तरीक़ेकार को छोड़कर अपनी मनमानी जिंदगी बसर करने की वजह से जहनी, जिस्मानी, अखलाकी, समाजी, माहौलियाती खराबियों को जो पैदा करते हैं, उसके वजह से हजारों लोग जो है बिलबिला उठते हैं, परेशान होते हैं और उनकी जिंदगियां तबाह ताराज हो जाते हैं। उसके मौजिब कौन बनते हैं? ये पॉलिसी को इख्तियार नहीं करने वाले। इस वजह से अल्लाह ताला इनके साथ इतना जबरदस्त जो है पकड़ की बात अल्लाह कह रहा है। नेक्स्ट। और क्लिक कीजिए।
हाँ बस उसी को रखिए, कम टू बैक जी। अब उसके बाद देखिए, अब उस पॉलिसी के साथ कितना जो है चिमट के रहना है, उस पॉलिसी से हटाने के लिए दूसरों की कोशिशें कैसे होती हैं, वो बात अल्लाह ताला इसमें बता रहा है। आपसे हरगिज राजी न होंगे यहूदी और ईसाई जब तक तुम उनके तरीके यानी उनके पॉलिसी पर न चलने लगो। अरे यहूदी ईसाई ये क्या है, समाजी पॉलिसीज में आते हैं ये। कभी आप अपने नफ्स को भी रखिए, कभी अपने खानदानी रिवायत को भी रखिए। हाँ, अब ये जो या पावरफुल जो इंस्टीट्यूशंस है वो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, तो एक मजहबी ग्रोह होते हैं, वो लोग जो है चाहते हैं कि तुम्हें अपने उस पॉलिसी से, अल्लाह के पॉलिसी से हटा के उनके पॉलिसी पर चलने के लिए वो लोग जो है इसरार करते हैं। साफ कह दो, जब ऐसा मौका आएगा तो साफ कह दो, रास्ता यानी पॉलिसी बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, और अगर तुमने उसकी ख्वाहिशात यानी उनकी पॉलिसी की पैरवी की उस इल्म के बाद, यानी देखिए उस इल्म के बाद यानी रियल पॉलिसी, इलाही पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हें नहीं मिलेगा। ओके, तो अल्लाह ताला की पॉलिसी के साथ चिमट कर रहने के ज़िम्मन में, अल्लाह ताला की पॉलिसी को छोड़ के दूसरों की पॉलिसी पर जो चलेंगे, उनके साथ अल्लाह ताला का इंतकाम का मामला कैसे होगा, ये अल्लाह ताला इसमें बताना चाहता है जी। नेक्स्ट। हाँ, इस आयत में 4 नुकात गौरतलब हैं। उनमें से एक, इस इलाही पॉलिसी को सिर्फ तिलावत करने वाली किताब की हैसियत से नहीं, बल्कि सख्ती के साथ अमल करने वाले कानून की हैसियत से भेजने का ऐलान। अल्लाह ताला इस पॉलिसी को क्यों भेजा आपके पास? बेसमझे अनजाने बस तिलावत कर लेने के लिए नहीं, बल्कि इसको जो है समझ के उस पर सख्ती के साथ अमल करने की कानून के हिस्से से अल्लाह ने इसको भेजने का ऐलान कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस इलाही पॉलिसी के अलावा दूसरों के ख्याली पॉलिसियों पर अमल न करने की वाज़ेह हुक्म। नंबर 3, जो लोग इन अहकामात पर अमल पैरा ना होंगे, उनका अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं होगा। मददगार न होने का खौफनाक इत्तला। नंबर 4, गैर इलाही पॉलिसियों को इख्तियार करने वालों को सख्ती से पकड़ने का संगीन इंतबाह। ये 4 नुकात इसमें गौरतलब है। नेक्स्ट, इलाही पॉलिसी पर थोड़ा बैक आ जाइए। इलाही पॉलिसी पर अमल दरामद न होने पर सख्त सजा क्यों दी जाएगी? नंबर 1, नाकिस पॉलिसियों की पैरवी की वजह से लोग बदकिरदार हो जाते हैं। उसकी वजह से एक ज़हनी, दूसरे जिस्मानी, तीसरे अखलाकी, 4 माशरती, 5 माहौलियाती शोबे इंतशार के शिकार हो जाती हैं। फिर उसकी वजह से जराइम व मजालिम का बाजार गर्म हो जाता है। अब चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। देखिए, जब एक आदमी जो है अपनी मनमानी पॉलिसी के मुताबिक चलता, तो उसके जहनी इंतशार की शिकार भी होता, फिर जो है अपनी जिस्मानी अमराज के भी शिकार हो जाता, बदअखलाकियत के शिकार हो जाता। फिर उसकी वजह से उसकी बीवी, उसके बच्चे या उसका शौहर या उसके अतनाफ रहने वाले पूरे लोग जो है परेशान हो जाना शुरू हो जाते हैं। जरा सोचिए आप, यानी इसके डेप्थ को समझना है हमको। अल्लाह क्यों इतना जो है सख्त सजे की बात कहता है? मिसाल के तौर पे एक अपनी लाडली प्यारी जो है बेटी को पाल पोस कर ये जो है से शादी किया, बाप एक जो है बाखलाक बच्चा नौजवान समझ के शादी किया। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन
या हफ्ता महीने के बाद उसको इत्तला मिला कि जो है तुम्हारा दामाद शराबी है, अब आपके बेटी को सता रहा है बोले, तो कितना सीना फट जाता, जरा सोचिए। बाप की हैसियत से, माँ की हैसियत से सोचिए आप, और खुद वो लड़की की हैसियत से सोचिए आप। वो इतने जो है ख्वाबें देखती है कि मेरा शौहर आएगा मेरे साथ, मेरी जिंदगी अच्छी होगी बोले, हाँ मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी बोल के समझ रही, इतनी तमन्नाओं के साथ जो है वो शादी की। उसके बाद जो है वो शराबी है, फिर उसको सता भी रहा है, फिर क्या कहेंगे उसको टीज भी कर रहा है, हाँ कोई सिगरेट पी के जो है उसको दाग देता है। तो जब इस तरह के, या चोर बोल के समझ में आया बाद में, या इस तरह कोई कोई बदअखलाकी की बात समझ में आई, तो बताइए उसके सीने पे क्या गुजरता, जरा सोचिए। आप वो लड़की बन जाइए, आप उस लड़की की माँ बन के सोचिए, आप उस लड़की के बाप बन के सोचिए, उस लड़के के भाई बन के सोचिए, उस लड़की के दादा बन के सोचिए, पूरे कुंभे के लोग जो कितना परेशान हो जाते हैं, जरा सोचिए। अब उसको काउंट करिए, अब उनकी इस तरह भी, उनकी बेकली, उनकी जो है परेशानी, और उनकी हैबत, उनकी तकलीफ, उनके दर्द, तो आप प्लस 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 करते हुए जाइए, उसका कोई लिमिट नहीं होगा। तो अल्लाह ताला अबदी जहन्नम की जो वही सुना रहा, क्यों सुना रहा? ये पूरे चीजें काउंट किए जाते हैं। एक शराबी बाप के गोद में पैदा होने वाले बच्चों की परेशानी कैसी होती है, मासूम बच्चे एक शराबी बाप की जो है हरकतों को देख के कैसा, कितना तकलीफ ज़्यादा हो जाते हैं, और उनकी जिंदगी कैसे जो है बर्बाद हो जाती है। उसके बाद कैसे जराइम, कैसे बुराइयों के अंदर वो पड़ जाते हैं, फिर उसके चेन रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने लोग मुतासिर होते हैं। और वो लोग अगर जो है पॉलिटिशियंस हो गए, तो कैसे जो है लोगों के पैसा करप्शन कर देते हैं, देखते हैं ना, तो उससे क्या तकलीफ होती है लोगों को। ये पूरा जब काउंट किया जाएगा तो अनकाउंटेबल जो है उस पर चले जाती बात। तो इसलिए ऐसे जालिमों को हम जो है अबदी जहन्नम में डाल देंगे, बोल के बता, ये है। फिर उसके बाद ये माहौलियात की जो मसाइल, आजकल बहुत ज्यादा साइंटिस्ट, माहौलियाती साइंटिस्ट वाह कर रहे हैं, और माहौलियात के साथ यानी एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है आज, उसके सजाएं हमको दी जा रही कि सुनामी के नाम पे, और फिर जिलजिलाओं के नाम पे, तूफानों के नाम पे, कैसे जो दुनिया के अंदर क़यामतें मचती हैं। ये किस वजह से होता है? ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो जो यानी वो अपने फैक्ट्रीज को मेंटेनेंस जो करना था, उसके कार्बन डाइऑक्साइड या उसके एसिड्स जो भी वाटर के अंदर फ्लो करते हैं, वाटर पोल्यूशन, उसकी वजह से कितने जानदार चीजें, इकोसिस्टम कैसे बर्बाद हो जा रहा, लोगों की तबीयत, लोगों की जो है सेहत कैसे बर्बाद हो जा रही, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, ये कौन करते हैं? लोग पूरे, जिनको खुदा के सामने कोई जवाबदेही का तस्वुर नहीं है, जिनको कोई खुदा होने का ही तस्वुर नहीं है, जिनको जिंदगी का मकसद क्या है उनको नहीं मालूम, जिनको जो जिंदगी के बाद क्या होने वाला है ये चीजें नहीं मालूम उनको। ये खुद अपने खुद साख्ता पॉलिसियों को बना के उस पर चलते हैं, उसके नताइज हम देखते हैं। तो इस तरह कितने सारे जो है ये बर्बादियां, ये तबाहियां, ये बेदर्दी के साथ इंसानों के साथ जो इस तरह की जो हरकतें जो हो रही, तो ये सब चीजें काउंट में आएंगे, फिर उसका हिसाब अल्लाह ताला वहां चुकाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह के इस इंतबाह को संजीदगी से लेकर फौरी अपने अपने ख्याली पॉलिसियों को तर्क कर दें और इलाही पॉलिसी की पैरवी में लग जाएं। ये काम हमको जो है करनी है। नेक्स्ट, अल्लाह के मुताबिक बुराई, मुसीबत और फसाद जैसे मसाइल की वजह कौन है? क्या है? बुराई, मुसीबतें और फसाद जैसे मसाइल की वजह कौन है? तुझे जो भी भलाई पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुझे बुराई पहुंचे वो तेरे नफ्स की तरफ से है। एक आयत, फिर एक आयत देखिए, तुम पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने भाई हाथों की कमाई से आई है, वो बहुत से कसूरों को वैसे ही दरगुजर कर देता है।
फिर एक आयत देखिए, फसाद फैल गया है खुश्की और तरी में लोगों के आमाल की सबब से, ताकि खुदा उनको उनके बाज आमाल का मजा चखाए। यानी तूफान, जिलजिले या बीमारियां जो भी आते हैं, उनके बाज आमाल के मजा चखाने के लिए अल्लाह ताला जो है इस तरह की चीजें पैदा करता है। यहाँ गौरतलब बात यह है, 3 आयत के अंदर एक कॉमन पॉइंट यह है कि इंसान के ऊपर जो मसाइब आते हैं, उन मसाइब का वजह कौन है? वो खुद हैं, उसके खुद के हाथों की कमाई है। यानी देखिए, दुनिया के अंदर लोग जब भूखे मरते हैं तो इसका मतलब अनाज की जो है पैदावार की कमी है, या अनाज को ब्लैक कर देना है, अनाज को ब्लैक कर देना है। यानी फसल की कमी नहीं है। आज जो है ढेर सारे जो है अनाज बड़े बड़े उसमें छुपाया हुआ, मतलब गोडाउन्स के अंदर है, और उसको ब्लैक कर दिए, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे, सड़ा के गला के फेंक दे रहे, मगर लोगों को जो है नहीं दे रहे। कितना जालिमाना हरकत है बताइए। तो इसका मतलब है जो भी वाक़ये पेश आते हैं, ये अल्लाह ताला जो कायनात बनाया, खूबसूरत जो कायनात बनाया, उसकी जो है वजह से नहीं है, बल्कि इससे जमीन पे कुर्रे अर्श पर रहने वाले जो भी मसाइब के शिकार होते हैं, वो उनके अपने हाथों की कमाई है। लिहाजा हर आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर जो आने वाले मसाइब का जिम्मेदार मैं हूं। ये बात अच्छी तरह जब समझता है, तो फिर अल्लाह की पॉलिसी क्या हो सकती है, दूसरों की पॉलिसी में जो फर्क आसानी से महसूस कर सकता है आदमी। नेक्स्ट। अल्लाह के मुताबिक मुआशरे में जुल्म और अजीम बुहरान की वजह क्या है? जो लोग मुनकिर हक हैं और वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा। ये किससे बोल रहा अल्लाह ताला? ये कुरान के मानने वालों को बोलता है अल्लाह ताला। या मुखातिब जो है हामिला ने कुरान और मोमिना ने कुरान और तालिबान कुरान से बात कर रहा अल्लाह ताला। अब और वो भी जो है हमें एक मिसाल भी देता है अल्लाह ताला, हमें जो है कौन सी मिसाल दे रहा अल्लाह ताला? मुनकिर हक है, यानी ये हमें शर्म दिला रहा अल्लाह ताला। ये बात सुन के हमें शर्म आनी चाहिए कि जो लोग हक से नावाकिफ हैं, जो दुनिया परस्त हैं, जो मादा परस्त हैं, वो लोग आपस में अलग अलग होने के बावजूद मुत्तफिक होकर जो हक के खिलाफ जो है एकजुट होकर काम करते हैं, तो उनकी तरह तुम हक परस्त, हक के खातिर उनकी तरह एकजुट होकर तुम काम नहीं करोगे तो क्या होगा? जमीन में फितना, तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन कबीर, और फसादुन कबीर। है ना, दुनिया के अंदर जो फसाद बरपा है आज, उसकी जो है जिम्मेदार कौन है? तुम्हारी नाइत्तेफाकियां हैं, यानी हम मुसलमानों की नाइत्तेफाकियां आपस में, और हमारे अंदर एक दूसरे कोऑपरेशन, यानी इस पॉलिसी को समझने, इस पॉलिसी को समझाने, इस पॉलिसी पर गामजन होने, इस पॉलिसी को आम करने के मामले के अंदर हम आपस में एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं। उसी वजह से आज की जो बुरहान, यानी क्या कहेंगे इसको, ये बड़ा फसाद जो देखते हैं, बुहरान जो देखते हैं, उसकी वजह आप हैं बोल के अल्लाह ताला बता रहा। जरा डरना चाहिए, हम इस बात से खौफ खाना चाहिए। अल्लाह हम पे रहम करे, करम करे कि कितना बड़ा जो है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, जरा सोचिए आप। तो लिहाजा आज के इस बुहरान की वजह यहूद हैं, आज के इस बुहरान की वजह ईसाई हैं, आज के इस बुहरान की वजह जो है दहरिये हैं बोल के हम बोलते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं बोलता, नहीं, नो, तुम्हारे सब बातें बेकार हैं।
इस बुहरान की वजह आप खुद हैं, क्योंकि वो गलत पॉलिसियों को बना रहे, वो अनजाने जाने अनजाने जैसे बना रहे, फिर उसको उसको अमल करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं वो। लेकिन हकीकी पॉलिसी को रखने वाले तुम उस पॉलिसी से भी नागहानी के शिकार हो गए, और उस पॉलिसी को इख्तियार करने की भी कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर उस पॉलिसी के मुताबिक लोगों के जहन साजी करने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम्हारी इससे करतूत की वजह से ये फितना, ये फसादुल कबीर तुम्हारी वजह से, बोलकर अल्लाह ताला बोल रहा है। क्या जवाब देंगे बोलिए कल क़यामत के दिन? और इसके नेगेटिव जो नताइज दुनिया के अंदर अब आने वाले हैं, दुनिया में भी सजा देगा अल्लाह ताला, उसे कैसे बचेंगे हम? तो लिहाजा इस मौके पर मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि बराह करम जितने लोग मेरी इस बातों को सुनते हैं, वो अपने तहिया कर लें कि कुरान को समझने, कुरान के पॉलिसी को समझने के लिए हम कुछ वक्त निकालें, कुरान के पॉलिसी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें, कुरान के पॉलिसी हक होने को लोगों के सामने वाजे करने की कोशिश हम करें, और उस पॉलिसी के मुताबिक लोगों को ढालना शुरू करेंगे, तो फिर ये फितना, ये फसाद जो है ये थमेगी। इसके लिए अपने आप को वक्फ करने की कोशिश कीजिए, वक्फ कीजिए इस काम के लिए। वीकली एटलीस्ट आप 2 आवर्स, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर्स भी निकालने की जो है तहिया कीजिए। हम एक अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर हम इस पॉलिसी की सदाकत को, सच्चाई को समझने और अमल करने और लोगों को समझाने की एक बेहतरीन मिशन चलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि हम जो है इस जुर्म से बच सकें। नेक्स्ट। क्या अल्लाह क़यामत तक यहूदियों पर ही जालिम बादशाहों को मुसल्लत करते रहेगा? फिर एक चेतावनी अल्लाह ताला क्या देता है देखिए, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा क़यामत तक, जो उनको बदतरीन अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारे रब सजा देने में तेज दस्त है, और यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। अब ये बहुत गौर तलब बात है कि बहुत सारी बातें यहूदियों के लिए बारे में बोला अल्लाह ताला, बस यहूदियों के लिए बोल के बोल रहे हैं हम। यहूदियों के बारे में बोलने का मतलब ये नहीं है कि बस यहूदियों के लिए ही ऐसा होगा। यहूदी जैसे हरकत अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, ये मतलब है इस आयत का। तो यहूदी जैसे जैसे जो है दुनिया के अंदर जुल्म और ज्यादती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कर रहे थे, उस वक्त अल्लाह ताला उनके साथ कैसे इंतकाम लिया, फिरौनियों को उन पर जो है मुसल्लत किया, बेदर्दी से उनके जो है लड़कों को कत्ल कर देते थे, और औरतों को जो है उनके पेट के बच्चों को जो है चीर के निकाल देते थे, अगर लड़कियों को रखते थे और लड़कों को जो है कत्ल कर देते, कितने जो है यानी कितना भयानक जो है वाकया देखिए यार। ये क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए कि उनके करतूत की वजह से जुल्म जो है अल्लाह ताला उन जालिमों के शिकार कर दिया। अब वैसे ही मुसलमानों के साथ भी ऐसा होगा, इससे पहले हुआ भी ऐसे। तातारियों के साथ क्या हुआ, या फिर इस तरह कई मरतबा तारीख के अंदर हम देखते हैं। अभी अनकरीब जो है हमारे ऊपर जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम पे एक घने बादल मंडलाने लगे, वो देख के जो है वो लोग जैसे संभल गए। अगर हम भी वैसा संभलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें बचा लेगा, नहीं तो फिर जो है हम पे भी एक अजाब अनकरीब आने वाला है, तो अल्लाह हमें जो है उससे बचाए। तो ये अजाब है, ये बदतरीन अजाब देंगे बोल के बोल रहा अल्लाह ताला। ये बदतरीन अजाब क्यों दे रहा अल्लाह ताला? इसलिए तुम्हारी जो है ये मेरी ये पॉलिसी तुम्हारे पास है ना, उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग आपको है ना, उसकी जो है पैरवी है ना, उसकी इशात है। ये है जुल्म, इसके वजह से जो फितना बर्पा हो गया दुनिया के अंदर, तो उसके एवज में अल्लाह ताला ये अजाब के शिकार में करने वाला हूं बोल के बोल रहा अल्लाह ताला। फिर उसी जगह नीचे एक अल्लाह ताला अपने जो है अल्लाह की जब्बारियत और अल्लाह की रहमत जो है गालिब है, इसलिए फरमा रहा अल्लाह ताला, यकीनन तुम्हारा रब सख्त जो है सजा देने में तेज दस्त भी है, लेकिन यकीनन वो दरगुजर करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। क्यों, किस पे करेगा? जो लोग जो है इस गलती को समझ जाते हैं और अपने आप को सुधार लेते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला सही मतलब अपना करम, अपना फजल करने के लिए तैयार है। लिहाजा हम जो है इसके लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट।
अब देखिए कुछ सवालात हैं यहाँ। अल्लाह किसको सजा देने की अल्लाह किसी को सजा देने की वजह उसका ताल्लुक किसी मखसूस ग्रोह से होना है या अल्लाह के दीन से दूर होकर दुनिया में बिगाड़ पैदा करना है। हम क्या समझते हैं? दुनिया में बिगाड़, दीन से दूर होना, दुनिया में बिगाड़ होने से कोई ताल्लुक नहीं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, बस हमारे लिए जो है जन्नत पक्का। हम जो है कलमा गो हैं, हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जैसे यहूदी बोलते थे वही बातें आज हम भी बोल रहे हैं। ये नहीं है। अल्लाह ताला क्या बता रहा कि अल्लाह ताला की जो है हम चहेतेले बनना है तो अल्लाह के दीन से दूरी को जो है खुरबत को इख्तियार करें और दुनिया में जो बिगाड़ पैदा हो उसको हम कम करें। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह दीनी शाकिले को बुनियाद बनाकर अमल करने वालों को तहफ्फुजात बख्शेगा। देखिए अल्लाह के तहफ्फुजात चाहते हैं हम, अल्लाह हमारी मदद कर दे, अल्लाह हमारे जो है करम कर दे हम पर बोले, तो अल्लाह के तहफ्फुज चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं। वो किसको मिलेगी? यानी फितरी नफसानी खानदानी शाकिले को बुनियाद बनाकर अमल करने वाले को तहफ्फुज अल्लाह बख्शता है या दीनी शाकिले को बना के उसके मुताबिक चलने वाले को अल्लाह बख्शता है? बोले तो दीनी शाकिला अपने जहन को ये हम कुरानी शाकिला हम बनाए तो फिर जब अल्लाह ताला हमें तहफ्फुज बख्शेगा। नेक्स्ट, तो बात यहाँ तक खत्म होगी हमारी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान यानी कुरान का महीना है ये, तो उसमें कुरान के बरकतों को, कुरान के जो फ़ज़ाइल को समझकर उसके मुताबिक चलने की तौफीक अल्लाह ताला हम तमाम को अता करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।